ओके, सो इन टुडेज क्लास हम अंडरस्टैंड करेंगे, ये पढ़ेंगे, ये समझेंगे that when we are specifically attempting P1, that how we should write our answers. मार्क्स किस तरीके से मिलेंगे, क्या लिखेंगे तो एग्जामिनर मार्क्स देगा, वरना एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा. बिकॉज बिजनेस का सबसे बड़ा डिलेमा क्या है? स्टूडेंट्स डोंट नो हाउ टू राइट आंसर्स. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दैट. आपसे मैं बात करूं ना, तो देखो एक बात अंडरस्टैंड करो कि हमारे 4 असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं. करेंटली आई एम ओनली स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट व्हाट? P1. 4 असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं? AO1 which is knowledge, AO2 which is application, AO3 analysis, AO4 evaluation. देखो when we are talking about assessment objective 1 which is knowledge, knowledge का मार्क कैसे मिलेगा? You will get the mark of knowledge when you are going to write about the core concepts, the definitions. या और आसान कर दूं आपसे तो भाई कुछ भी जो बुक में लिखा हुआ है वो चीज लिखोगे तो नॉलेज का मार्क, लेकिन इट शुड बी रेलेवेंट टू व्हाट द एग्जामिनर इज डिमांडिंग. तो नॉलेज का मार्क क्या है? कोर कॉन्सेप्ट या डेफिनेशन. एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन मीन लिंकिंग इट टू द केस. देखो P2 के अंदर तो केस स्टडी है, P3 में भी केस स्टडी है, P4 में भी केस स्टडी है. द क्वेश्चन कम्स कि P1 को हम कैसे लिंक करें. सो इन P1 यूजुअली a business is stated, like a mining business, like a manufacturing business, like a hotel business. So everything will be relating to a hotel. Okay, everything will be related to mining. Or if the case is silent and only using the word business, so in general terms we need to come up with an example of a business and write our answers. The application का mark वैसे मिलेगा. Analysis is about causes and impact. क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, and usually analysis को हम end करते हैं क्या result निकल रहा है. Basically in analysis you need to understand कि chain reaction कैसे बन रही है. And for a good analysis आपको कम से कम 3 से 4 connecting points use करने हैं. Evaluation, जिसमें स्टूडेंट सबसे ज्यादा डिफिकल्टी फेस करते हैं, आर द व्हाट? जजमेंट्स, recommendations and opinions. But do remember one thing in mind कि judgment, recommendation या opinion देना is not sufficient. If you are giving an opinion while writing the answer, you need to justify that what is the reason for you, that आपको ये क्यों लगता है कि ये होना चाहिए. Justification जरूरी है, reasoning जरूरी है, and if you want you can contradict the judgment as well, that currently it is relevant, in the long term it might not be. ये brief understanding थी हमारे assessment objectives की, knowledge की, application की, analysis की और evaluation. अब देखो P1 is 40 marks and it is 1 hour 15 minutes. Basic mathematical calculations 1 mark 1.5 minutes. That's it. Usually P1 के अंदर स्टूडेंट्स को पेपर टाइम पे कंप्लीट करने का इशू नहीं होता, but do remember one thing in mind, 1 mark and 1.5 minutes. So let's start with section A and understand कि एग्जामिनर हमसे डिमांड क्या करता है. The first question that we see over here is what? Define the term secondary research या define the term sustainability, define zero budgeting. तो ये define वाले जो क्वेश्चंस हैं इनके अंदर मार्क्स कितने हैं? 2. And for these 2 marks the examiner from us wants कि हम knowledge के 2 points mention करें, 2 relevant knowledge points, और आपको मार्क्स मिल जाएंगे. अगर आपकी डेफिनेशन के अंदर सिर्फ एक नॉलेज का पॉइंट है तो you will only get 1 mark. If you feel like कि आपको दूसरा नॉलेज का पॉइंट नहीं आ रहा, write a definition, sorry, write an example to support it. अब जैसे यहाँ पर देखो define the term secondary research आता है, तो इसकी एक मैं definition की एक probable answer की example देता हूँ. फिर मेरे पास specimen marking scheme भी खुली हुई है, वो भी हम देखते हैं. Secondary research is also known as desk research, in which
The business collects, accumulates and analyzes the data which is already collected and uses it for its decision making process. For example, for secondary research, the business can use internet, newspapers or its own historical records. अब देखो, इन एक्सप्लेनेशन एग्जांपल्स के बाद एग्जामिनर के पास मौका नहीं है कि वो आपके मार्क्स डिडक्ट कर दे. देखो, नॉलेज के 2 पॉइंट्स, बट इफ यू फील लाइक योर 2 पॉइंट्स आर नॉट गुड और इफ यू नो ओनली 1 पॉइंट, व्हाट यू नीड टू डू इज आप वहां पर एक एग्जांपल दे, तो आपकी नॉलेज सिक्योर हो जाएगी और आपको डेफिनेशन में 2 मार्क्स मिल जाएंगे. लेट्स लुक एट द मार्किंग स्कीम एज वेल. मैं सही बात कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? ओके, आई हैव सम क्वेश्चंस. 2 डेफिनेशन और 1 डेफिनेशन 1 एग्जांपल. मैं देख लेता हूं. देखो, इन 2 मार्क्स आपको 2 नॉलेज के पॉइंट्स मेंशन करने हैं. सो 2 डेफिनेशंस नहीं होगी, वो डेफिनेशन तो एक ही होती है, बट व्हाइल डिफाइनिंग अ पर्टिकुलर पॉइंट, उसके अंदर या कोई कॉन्सेप्ट, आपको 2 पॉइंट्स यूज करने, 2 चीजें बतानी है. 2 रेलेवेंट पॉइंट्स बताओगे तो आपको डेफिनेशन के 2 मार्क्स मिलेंगे. अगर आपके पास सिर्फ एक पॉइंट है तो आप क्या लिख दो उसके आगे? एग्जाम्पल, ताकि आपका मार्क सिक्योर हो जाए. ये देख रहे हो, मैं आपको दिखाता हूं जरा. ये टेबल 1 था. AO1 के कितने? 2 मार्क्स, यानी नॉलेज के 2 मार्क्स. अब मैंने क्या क्या वर्ड इस्तेमाल किया? मैंने सेकेंड हैंड डेटा की बात करी थी, मुझे 1 मार्क क्या मिल गया. और दूसरा मैंने क्या इस्तेमाल किया? डेटा डेट ऑलरेडी एग्जिस्ट इस्तेमाल किया. और इन्होंने एग्जांपल दी थी रिपोर्ट्स एंड सेंसस की. मैंने एग्जांपल क्या दी? इंटरनेट की और कंपनी का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड. तो मैंने 3 चीजें लिख दी. मैं 2 भी लिख देता तो मुझे 2 मार्क्स पूरे मिल जाते, लेकिन मैंने 3 लिख दी. मैं सिक्योर हो गया, एग्जामिनर मेरे मार्क्स डिडक्ट नहीं कर सकता. तो 2 मार्क डेफिनेशन के अंदर हमें 2 पॉइंट्स लिखना जरूरी है फॉर दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट. बट ये बात है कि कॉन्सेप्ट के रिलेटेड होने चाहिए. एम्बिग्विटी हुई तो मार्क्स नहीं मिलेंगे. आई होप ये क्लियर होगा. अब हम आते हैं 3 मार्क्स के ऊपर. ठीक है, अच्छा अपने पास लिख लो, 2 मार्क्स इक्वल्स टू 2 नॉलेज पॉइंट्स. लिख लो अपने पास ताकि आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी. 2 मार्क्स इक्वल्स टू 2 नॉलेज पॉइंट्स. ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स 3 मार्क्स. अब 3 मार्क्स का सिनेरियो क्या होता है और उसका ब्रेकअप क्या होता है? ब्रेकअप लिखो अपने पास. 3 मार्क्स में से 1 मार्क नॉलेज का होता है एंड 2 मार्क एप्लीकेशन के होते हैं. क्या होते हैं? 2 मार्क एप्लीकेशन के होते हैं. 3 मार्क्स का ब्रेकअप क्या है? 1 मार्क नॉलेज एंड 2 मार्क्स एप्लीकेशन. देखो, अगर आप पुराने पेपर उठाओगे ना तो यूजुअली ये 3 मार्क्स के अंदर 2-2 चीजें पूछी हुई. यूजुअली क्या ऐसा ही होता था. बट द न्यू पैटर्न इज दैट फ्रॉम नाउ ऑन 3 मार्क्स में सिर्फ वो एक चीज की एक्सप्लेनेशन मांगेगा, सिर्फ एक चीज की, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंटर की. द क्वेश्चन ओवर हियर इज व्हाट? एक्सप्लेन वन एडवांटेज टू अ बिजनेस of data collected using primary research methods. कोई भी एक एक्सप्लेन करना है एडवांटेज जिसके अंदर बिजनेस ने डेटा प्राइमरी रिसर्च से कलेक्ट किया हो, यानी प्राइमरी रिसर्च के एडवांटेज को समझाना है. तो आप यहाँ पर प्राइमरी रिसर्च की डेफिनेशन दोगे तो एग्जामिनर मार्क्स आपको कम मिलेंगे जब आप एडवांटेज बताओगे. नॉलेज का पॉइंट कहां पर है? एडवांटेज के अंदर. जो चीज पूछ रहा है वो बताओगे तो नॉलेज का 1 मार्क मिल गया. अब देखो, नॉलेज का मार्क एक ही है, चाहे आप 4 एडवांटेज लिख दो, चाहे आप 3 एडवांटेज लिख दो, 10 लिख दो, एग्जामिनर के पास अपने मार्क्स नहीं तो आपको दे देगा. सिंपल लिखोगे, द डेटा इज अप टू डेट, द डेटा इज रेलेवेंट, द डेटा इज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस. ठीक है, यहाँ पर आपको इतना सा भी लिखोगे ना, आपको नॉलेज के मार्क्स मिल जाएंगे. असल मार्क्स यहाँ पर है एप्लीकेशन के, वो जो 2 मार्क्स है. अब देखो, जो 2 मार्क्स एप्लीकेशन के हैं उसके अंदर गेम हमारा क्या आता है. ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, वेट करना प्लीज. ये रहा 1 मार्क नॉलेज का और 2 मार्क एप्लीकेशन. तो यहाँ पर एप्लीकेशन पे आप देखो, डेवलप्ड एप्लीकेशन की बात हो रही है. लेवल 1 पे होती है लिमिटेड एप्लीकेशन और लेवल 2 पे क्या होती है? डेवलप्ड एप्लीकेशन. या डेवलप्ड एप्लीकेशन समझना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है. अब एप्लीकेशन का मतलब क्या है? केस से रेलेवेंट बात, केस से. अब देखो यहाँ पर क्या था? 1 एडवांटेज टू अ बिजनेस. अब वो बिजनेस कोई भी हो सकता है, तो खाली हम जनरलाइज एग्जांपल देंगे तो हमारा काम हो जाएगा. लेकिन यहाँ पर अगर होटल होता तो होटल से रिलेटेड बात करते.
बेकरी होती तो बेकरी से रिलेटेड बात करते। अब लेट्स फॉर एग्जांपल मैं इसको पॉइंटर एक्सप्लेन करता हूँ। द एडवांटेज ऑफ यूजिंग प्राइमरी रिसर्च वुड बी that the data collected by the business will be up to date and accurate. When the business will have accurate and up to date data, the business will be able to take informed decisions. As the strategy will be according to the market condition, the business will have a greater probability of success and will be able to provide to the customers more effectively. आगे लिखना चाहूँ तो और बहुत ज्यादा लंबी हो सकती है, रिजल्टिंग इन मोर सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी। बट मैंने एक ही एडवांटेज को आगे डिटेल में समझाया कि वो कैसे एडवांटेज है कि डेटा जब अप टू डेट होगा तो स्ट्रैटेजी वैसे ही अच्छे तरीके से बनेगी। जब स्ट्रैटेजी अच्छे तरीके से बनेगी तो कस्टमर्स को प्रॉपर्ली डील करोगे, कस्टमर्स को डील करोगे तो सेल्स ज्यादा होंगी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर सवाल ले लेता हूँ, बिल्कुल अभी सवाल आपका भी सवाल लेता हूँ मैं अभी। तो पहले मैं देखता हूँ कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। तो नॉलेज में मैंने क्या बोला, ये लोग बोल क्या रहे हैं कि फर्स्ट हैंड डेटा होता है, सही है। और दूसरी बात, इन्होंने नॉलेज के मार्क्स और कहां पे दिए, कोई भी एडवांटेज लिखने पे। ठीक है, मैंने बोला डेटा रेलेवेंट है, ठीक है, फर्स्ट हैंड है। दूसरा कोई भी मेथड लिख दोगे तब भी आपको नॉलेज के मार्क्स मिल गए। अच्छा ईमान, सॉरी आपको मैंने बताया नहीं, प्राइमरी रिसर्च इज अ टेक्निक जिसके अंदर खुद हम मार्केट में जाके डेटा कलेक्ट करते हैं, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है, तो ये नॉलेज का मार्क हो। अब एप्लीकेशन देखते हैं, तब ये होगा क्या, ये देखो एप्लीकेशन कैसे हुई है, may produce data that is more up to date, may therefore be more useful to a business। और मैं थोड़ा और आगे चले गया कि भाई स्ट्रैटेजी अच्छी बनेगी तो सेल ज्यादा अच्छी। मुझे कोई और एडवांटेज लिखने की जरूरत ही नहीं थी, एक ही एडवांटेज लिखना है और उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है सही तरीके से। एक ही एडवांटेज लिखना है, उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है सही तरीके से। हो गई बात खत्म। ये क्या था आपका, वन एडवांटेज टू अ बिजनेस। अच्छा, अब वापस मैं सवाल पे जाता हूं जहां पर वापस मुझसे 2 मार्क मांगे हुए, फिर मुझसे 3 मार्क मांगे हुए, तो ये तो हमने डिस्कस कर लिए। अब हम आते हैं किसके ऊपर, सेक्शन ए के लास्ट सवाल के ऊपर, जो है 5 मार्क का सवाल है। अच्छा मैं आपको एक बात वापस से बताऊं, द सिनेरियो इज दैट जब हम बात कर रहे हैं किसकी, नॉलेज की, किसकी बात कर रहे हैं, नॉलेज की। तो देखो हम एप्लीकेशन की बात करें और नॉलेज की बात करें, ठीक है। तो नॉलेज क्या है, डेफिनेशन या कोर कॉन्सेप्ट, वाइल एप्लीकेशन का सिनेरियो क्या है कि लिंक विद द केस। अच्छा यहां पर जर्नलाइज था तो हमने जर्नलाइज यूज कर लिया। अब देखो एक एप्लीकेशन होती है और एक डेवलप एप्लीकेशन होती है। 3 मार्क्स में क्या हो रही है, डेवलप्ड एप्लीकेशन, यानी एक पॉइंट को समझाने के लिए उससे 2 चीजें रेलेवेंट हमें लेके चलनी, सही, उससे 2 और आगे चीजें क्या होंगी। ये 2 मार्क और 3 मार्क क्लियर होते हैं हमारे। अगर मैं 5 मार्क्स की बात करूंगी, 5 मार्क्स को अटेम्प्ट कैसे करना है, तो 5 मार्क्स का जरा अपने पास ब्रेकअप लिखो। जब 5 मार्क्स का आंसर होता है हमारे पास सेक्शन ए में, 5 मार्क्स का जो आंसर होता है हमारे पास सेक्शन ए में, तो उसमें जो 1 मार्क होता है वो किसका है, नॉलेज का। ओनली 1 मार्क फॉर नॉलेज, 2 मार्क्स फॉर एप्लीकेशन एंड 2 मार्क्स फॉर एनालिसिस। ठीक है, तो वापस अपने पास नोट डाउन कर लो, 1 मार्क फॉर नॉलेज, 2 मार्क फॉर एप्लीकेशन एंड 2 मार्क्स फॉर एनालिसिस। ओके, तो अब इसके आंसर को लिखना कैसे। अच्छा देखो एक बात बता दूं, एप्लीकेशन डेवलप होगी या सिंपल एप्लीकेशन होगी, मैं वही बता रहा हूं अभी कि 5 मार्क वाले सवाल में नॉलेज तो सिंपल 1 लाइनर है जो आपने पॉइंट या कॉन्सेप्ट लिख दिया, एप्लीकेशन भी यहाँ पर डेवलप्ड है और एनालिसिस भी यहाँ पर डेवलप्ड है। अगर मैं एप्लीकेशन और एनालिसिस की बात करूं तो एप्लीकेशन का मतलब होता है लिंक विद द केस। तो जब डेवलप्ड एप्लीकेशन होती है तो मुझे 2 रेलेवेंट एप्लीकेशन के पॉइंट्स देने हैं और मुझे चेन रिएक्शन 3 से 4 पॉइंट्स का कंटिन्यूअसली बनाना है, तब जाके मुझे स्ट्रॉन्ग मार्क्स मिलेंगे। और जिस तरह मैंने 3 मार्क में बोला था ना कि अब आपसे सिर्फ ये एक चीज पूछेगा, जैसे देखो यहाँ पर पूछा है 1 बेनिफिट, ऊपर पूछा है 1 रीजन, या उससे ऊपर पूछा है 1 एडवांटेज, तो 5 मार्क्स में भी आपसे क्या पूछेगा, 1 वे। अब ये 2 वाला सिनेरियो खत्म हो चुका है, तो आपको एक ही चीज बतानी है, उसको केस से लिंक करना है
और उसकी चेन रिएक्शन बनानी कि क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये बोला है, एक्सप्लेन वन वे इन विच एथिक्स में इन्फ्लुएंस द एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस। तो देखो नॉलेज का मार्क यहाँ पर बताऊं कब मिल जाएगा, जब मैं एथिक्स की डेफिनेशन दे दूंगा या एथिक्स के बारे में बता दूंगा, मुझे मार्क्स मिल जाएगा। यानी एथिक्स आर द मॉरल गाइडलाइंस अ बिजनेस फॉलोज विदाउट एनी लीगल ऑब्लिगेशन। यानी इसमें जो 2 मार्क की डेफिनेशन है ना, उस तरह डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। यू एक्सप्लेन इट इन अ लिमिटेड मैनर, तब भी आपको नॉलेज के मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर बात क्या है, यहाँ पर भी कोई स्पेसिफिक बिजनेस की बात नहीं बताई। यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि वन वे बताओ इन विच एथिक्स में इन्फ्लुएंस द एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस, एक सिंपल बिजनेस के बारे में। तो let me give you a structure. Ethics are the moral guidelines a business may follow without any legal obligation on its own. यहां तक लिखा, यहां तक हमने लिखा, ये क्या हो गया, नॉलेज का मार्क। Ethics are the moral guidelines a business follows without any legal obligation on its own. यहां पर किसके मार्क्स मिल गए, नॉलेज के। अब now I'm going to link it with a case. The objectives of a business may be influenced by the business, sorry यहाँ पर objective नहीं, activities. The activities of a business may be influenced by the business that due to ethics a business may use more sustainable material for packaging. एक सिनेरियो बनाया मैंने, केस से लिंक किया, may use more sustainable material for packaging. अब मैं बता रहा हूं, ये है 5 नंबर से सस्टेनेबल मटेरियल फॉर पैकेजिंग, और आगे हम इसको और आगे लिंक करता हूं, और मैं यूज सस्टेनेबल मटेरियल फॉर पैकेजिंग, और मैं सोर्स मटेरियल फ्रॉम फेयर ट्रेड सप्लायर्स, और बेसिकली दे मे डू व्हाट, दे मे पे देयर वर्कर्स अ फेयर वेज। कुछ भी सिनेरियो बनाओ, तो उसका आगे चेन रिएक्शन बनाओगे। इफ दे परचेज sustainable material for packaging, it may result in a lesser contribution to the carbon footprint, due to which the business will contribute less to pollution. As the business will contribute less to pollution, there will be a positive brand image as the business is working towards sustainability, which will attract more customers, which resulting in more sales, due to which the business may generate a greater profit. However, using sustainable materials might be expensive and costly. यहाँ पर एग्जामिनर चाह के भी आपका 1 मार्क भी डिडक्ट नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एनालिसिस इज चेन रिएक्शन, बिल्कुल मुस्तफा ऐसे ही कह रहे हो। एंड हसीब पूछ रहे हैं व्हाट इज डेवलप एप्लीकेशन, मैं बता देता हूँ वापस से। देखो एप्लीकेशन होता है लिंक विद द केस, और जो डेवलप एप्लीकेशन होती है ना, देखो इसको समझने में थोड़ी सी टेक्निकलिटी आती है, दैट इट इज मोर ऑफ अ डिटेल्ड एप्लीकेशन, और यू आर एक्सप्लेनिंग द पर्टिकुलर पॉइंट विद 2 लिंक्स टू द केस, विद 2 लिंक्स जो और डिटेल्ड है। तो डेवलप पे आप चले जाते। एनालिसिस जिस तरह आपने बिल्कुल सही पकड़ा मुस्तफा शहबाज, कि आप चेन रिएक्शंस पकड़ते हो, 3 to 4 चेन रिएक्शंस बनाओगे और किसी ना किसी रिजल्ट पे उसको खत्म कर दोगे। तो ये 5 मार्कर्स। 5 मार्क क्या था, 1 मार्क नॉलेज, 2 मार्क एप्लीकेशन एंड 2 मार्क्स एनालिसिस। तो अभी तक हमने सेक्शन ए देखा है। सेक्शन ए में 2 मार्क का सवाल है, 3 मार्क का सवाल है और 5 मार्क का सवाल है। तो देखो नॉलेज इज इंपॉर्टेंट, लेकिन देखो नॉलेज के चक्कर में आप ये मत करो कि आपने 4-4, 5-5 लाइनें सिर्फ नॉलेज की भर दी, या बुक की नॉलेज लिखते जा रहे हो लिखते जा रहे हो। एग्जामिनर के पास एक लिमिटेड मार्क्स, 5 मार्क में सिर्फ 1 मार्क नॉलेज का है। अगर आप आधा पेज नॉलेज का लिख दो, एग्जामिनर आपको 1 से ज्यादा दे ही नहीं सकता। हाँ, नॉलेज के 2 मार्क्स पूरे लेने के लिए डेफिनेशन में 2 पॉइंट्स लिखना जरूरी है, और उसके लिए एक ट्रिक ये भी है कि अगर आपको एक पॉइंट नहीं याद आ रहा तो एक पॉइंट लिखो, साथ में एग्जाम्पल दे दो, तो आपके मार्क्स पूरे हो जाएंगे। आई होप सेक्शन ए आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि लिखना कैसे है। लेट्स मूव टुवर्ड सेक्शन बी। सेक्शन बी की थोड़ी सी बातें करें। देखो जब मैं आपसे सेक्शन बी की बात कर रहा हूं ना, तो सेक्शन बी में आपको पता है
पहले तो 3 सवाल होते थे, हमें कोई एक करना होता था, अब सिर्फ एक करना है। ठीक है, हमारी स्क्रीन पे जो नजर आ रहा है हमें एक करना है। 5AB कर लो या 6AB कर लो। देखो 8 का जो पैटर्न है ना इज समवॉट सिमिलर टू 5। 8 मार्क्स का पैटर्न इज समवॉट सिमिलर टू 5, बट 8 मार्क की लेंथ बड़ी हो जाती है। 8 मार्क की लेंथ, शाबाश, 8 मार्क की लेंथ बड़ी हो जाती है। मैं आपको समझाता हूँ। 8 मार्क का पहले ब्रेकअप लिख लो अपने पास। 8 मार्क्स के अंदर आपके 2 मार्क्स किसके हैं? नॉलेज के। 2 मार्क्स आपके किसके हैं? एप्लीकेशन के। और जो 4 मार्क्स हैं क्या है? 4 मार्क्स, शाबाश, 4 मार्क्स है हमारे एनालिसिस के। अच्छा, लेकिन आपको एक बात बता दो, यहां पर 8 मार्क्स में डेवलप्ड एप्लीकेशन डिमांड नहीं करता, लेकिन ये 8 मार्क्स में डेवलप्ड एनालिसिस जरूर डिमांड करता है। अब देखो मैं एक बात बताऊं, recommended way of starting long answers is what? With a definition। क्या आप डेफिनेशन दे दो तो आपका आंसर का आपको स्टार्ट मिल जाएगा, और डेफिनेशन से आपको नॉलेज का पॉइंट भी। लेकिन भाई अगर आपको नहीं आती ना तो टेंशन लेने की जरूरत। जब जैसे ये वाला सवाल देखो 5A वाला, एनालाइज 2 रीजंस व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ बिजनेस टू सेट स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स। ये सवाल है 5A। इसमें अगर आपको स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स के बारे में नहीं पता, डेफिनेशन नहीं भी पता ना, आप कोई भी एक पॉइंटर पकड़ लो कि अब इसमें से आपको एक्सप्लेन करना है ना, तो कोई भी इसमें से नॉलेज का बोलो दैट इफ एन ऑब्जेक्टिव इज स्पेसिफिक, स्पेसिफिक मींस रिलेटिंग टू द केस, knowledge के relating to the business, sorry my mistake, specific means relating to the business, yeah, if the objective is measurable, which means it has a quantifiable term on which the business can develop a strategy and work towards, such as increase sales by 10%। अब देखो मैंने इसमें क्या करा, नॉलेज भी दे दी और साथ में एप्लीकेशन भी बिजनेस के साथ बना दी, क्योंकि यहाँ पर जनरलाइज लिखा हुआ था इंपॉर्टेंट फॉर अ बिजनेस। तो बिजनेस के अंदर मैंने स्पेसिफिकली बताया कि इंक्रीज सेल्स बाय 10%, तो एप्लीकेशन भी हो गई। मैंने बोला जब वो मेजरेबल ऑब्जेक्टिव होगा तो भाई मैं स्ट्रेटजीज उसी के हिसाब से बनाऊंगा कि भाई अब मेरा सेल्स का ऑब्जेक्टिव है इंक्रीज सेल्स बाय 10%। मुझे एग्जैक्टली पता होगा कि हर प्रोडक्ट के ऊपर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, मेरा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। उसी की बेसिस पे मैं क्या करूंगा, रिसोर्सेज को एलोकेट करूंगा। जब रिसोर्सेज उसी तरीके से एलोकेट होंगी तो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव होने के चांसेस ज्यादा होंगे। ऑल्सो मैं इस टेक्निक की बेसिस पे आफ्टर अ पीरियड, यानी मेजरेबल है तो हम उस टेक्निक की बेसिस पे अपने ऑब्जेक्टिव को इवेल्युएट भी कर सकते हैं कि हम वो ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहे हैं, या अगर नहीं कर रहे तो हम टाइमली चेंज भी कर सकते हैं। इस तरीके से ये एक पैराग्राफ। फिर बताओगे दैट फॉर एग्जांपल इफ एन ऑब्जेक्टिव इज अग्रीड, या अग्रीड मतलब सब लोग उस पर अग्री कर रहे हैं या याद किया हमें अचीव करना है, सो ऑल द वर्कर्स विल बी वर्किंग ऑन द सेम ऑब्जेक्टिव, as every individual worker in the business, such as all the functional managers, such as the HR manager, marketing manager, finance manager, ये एप्लीकेशन की बात हो रही है, बिजनेस रिलेटेड बात कर रहा हूँ, एप्लीकेशन है, will be working towards achieving the same objective, therefore they will be helping each other। सही है, when they will be helping each other, supporting each other, the business will work more efficiently, resulting in lesser wastage of resources, due to which the cost will be less and the business will be able to achieve its targets, such as in the case if the target is increase profit, the business might be able to achieve that। तो भाई देखो, यानी इसको आसान अल्फाज में समझाऊं, 4 मार्क का एक पैराग्राफ है, 4 मार्क का एक पैराग्राफ। कैसे? नॉलेज पकड़ी, उसको एप्लीकेशन से लिंक किया और उसका चेन रिएक्शन बना के रिजल्ट पे खत्म किया, 4 मार्क्स हो गए। फिर वापस नॉलेज पकड़ी, एप्लीकेशन से लिंक किया, चेन रिएक्शन बनाया 4-5 और रिजल्ट पे एंड कर दिया, दूसरे 4 मार्क्स हो गए, तुम्हारे 8 मार्क सिक्योर हो गए। 3, 4, 5, 6 पैराग्राफ सीखने की जरूरत नहीं है। डेफिनेशन से स्टार्ट करना चाहो, वेल एंड गुड, बहुत बेहतरीन अप्रोच है। नहीं आती, टेंशन नहीं लेनी, डायरेक्ट 2 पैराग्राफ्स में 2 पॉइंटर्स एक्सप्लेन कर दो रिजल्ट्स के साथ। लेकिन देखो चेन रिएक्शन थोड़ा सा डिटेल्ड होना चाहिए, ऐसा नहीं ये होगा तो ये हो जाएगा, ऐसा नहीं, समझाना है। यानी अगर मैं और स्लैंग में आ जाऊं, घर तक छोड़ के आना, यानी सामने वाले के जहन में कोई क्वेश्चन मार्क ना हो। राइट एन आंसर इन अ वे और एक्सप्लेन एन आंसर इन अ पर्टिकुलर वे दैट द पर्सन रीडिंग योर आंसर डज नॉट हैव बिजनेस नॉलेज, और अगर वो सिर्फ आपका आंसर पढ़े तो उसको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए।
बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरीके से आंसर लिख रहे होते हैं, यार ये तो अंडरस्टूड सी बात है ना यार, इसको अब क्या एक्सप्लेन करूँ, ये तो बच्चों वाली बात है। ऐसी गलती नहीं करना, चेन्स प्रॉपर बनेंगी और वो रिजल्ट पे एंड। कंक्लूड 8 मार्क्स। देखो ईमान, कंक्लूजन नहीं है 8 मार्क्स में, फाइनल कंक्लूजन डिमांडेड ही नहीं होता। और एक बात बता दूं, 8 मार्क्स में हमेशा आपसे 2 पॉइंट्स ही मांगेगा। क्या मांगेगा, देख रहे हो, सी में भी 2 मांगे, 5 में भी 3 4 कुछ नहीं मांगेगा, 2 मांगेगा, और 2 पॉइंट्स को बस एक्सप्लेन करना है रिजल्ट पे, एनालाइज। या तो देखो यहां पर देखो नीचे पॉसिबल डिसएडवांटेजेस पूछ रहा है, कहीं पॉसिबल एडवांटेजेस पूछेगा, कहीं क्वालिटीज पूछेगा, कोई भी 2 फैक्टर्स के ऊपर बात करेगा, एंड दोस फैक्टर्स 2 फैक्टर्स कैन बी एनीथिंग, क्वालिटीज, एलिमेंट्स, एनीथिंग। ठीक है, जरूरी नहीं वो प्रोज एंड कॉन्स, वो वेरी कर सकते हैं। तो कोई भी 2 चीजें पूछेगा, और ईमान 8 मार्क्स में स्पेसिफिक कंक्लूजन डिमांडेड नहीं होता। जो आपको स्पेसिफिक कंक्लूजन, रिकमेंडेशन, ओपिनियन जो देना होता है वो कहां देना होता है, 12 मार्क्स। अब देखो 12 मार्क्स के अंदर जो सिनेरियो आता है वो क्या आता है, दैट ब्रेकअप सुन लो। 12 मार्क्स, 2 मार्क्स फॉर नॉलेज, 2 मार्क्स फॉर एप्लीकेशन, 2 मार्क्स फॉर एनालिसिस, एंड 6 मार्क्स फॉर इवैल्यूएशन। यानी 12 में से आधे मार्क्स हैं ही किसके, इवैल्यूएशन। एंड इवैल्यूएशन इज व्हाट, जजमेंट्स, recommendations, opinions। लेकिन सिर्फ जजमेंट या रिकमेंडेशन देना नहीं है, that in my opinion we should move to location A, in my opinion we should purchase factory A, नहीं, ओपिनियन दो, रिकमेंडेशन दो, तो उसे जस्टिफाई भी करो, समझाओ, डिटेल्ड में बताओ, और अगर उसका कॉन्ट्रडिक्शन देना है तो कॉन्ट्रडिक्शन भी दे सकते हो कि अभी के हिसाब से तो लोकेशन ए अच्छी है, फ्यूचर में जाके यहाँ पर मसला आ सकता है। अच्छा यहाँ पर देखो मैं अपनी बात बता रहा हूँ, जब मैं शुरू शुरू में बच्चों से आंसर लिखवाता था, एक चीज देख लेते हैं, बिल्कुल मैं दिखा देता हूँ आपको, सैंपल आंसर्स भी दिखा देता हूँ। हाँ, क्यों कैपिटलाइज, यानी स्मार्ट की बात हो रही है ना हसीब, इसके लिए हमने उनको, उन्होंने इसके लिए इसको कैपिटलाइज किया हुआ है, स्मार्ट एब्रीविएशन है बेसिक। अच्छा, तो हम वापस आते हैं हमने 12 मार्क पे। मैं यूजुअली बच्चों को क्या बोलता था यार, कि 8 मार्क में अगर आप 2 पैराग्राफ्स 2 पॉइंटर्स की बात कर रहे हो, तो 12 में आप कितने लिखो, 3। लेकिन आफ्टर गोइंग थ्रू दिस मार्किंग स्कीम, एग्जामिनर के पास नॉलेज के कितने मार्क्स हैं, तो भाई 3 लिख भी लोगे तो तीसरे को वो नॉलेज दे सकता ही नहीं, उसके हाथ में ही नहीं है वो सीन कर देगा, वो टिक लगा देगा, उसके पास मार्क्स खत्म हो गए, उसने पीछे नॉलेज के मार्क्स पूरे कर दिए। तो अगर आपको स्टार्ट करना है, द बेस्ट प्रैक्टिस इज डेफिनेशन दे दो, सवाल स्टार्ट हो गया। नॉलेज के 2 ही मार्क्स है ना, 2 स्ट्रॉन्ग पैराग्राफ्स बनाओ, 2 स्ट्रॉन्ग पैराग्राफ्स बनाओ, और उसके हिसाब से लेके चलो। ठीक है, कोई भी एक पैराग्राफ बनाया, कोई भी नॉलेज का पॉइंट लिया, कोई भी कॉन्सेप्ट लिया, उसको केस से लिंक कर दिया। जैसे यहां पर देखो, ये वाला सवाल देखो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन अ फास्ट फूड रेस्टोरेंट, क्या बिजनेस है, तो कोई भी बात होगी किसकी होगी, फास्ट फूड रेस्टोरेंट की, टू मेंटेन अ हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉय मोरल एंड वेलफेयर। ये बोल रहा है कि फास्ट फूड रेस्टोरेंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है एचआर मैनेजर की, कि एम्प्लॉय का मोरल एंड वेलफेयर हाई होना चाहिए। और जब इस तरह का सवाल आता है ना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आंसर ये नहीं होता, आंसर में आप स्पेसिफिकली ओपिनियन में, जजमेंट में बताते हो, मोरल एंड वेलफेयर इज इंपॉर्टेंट, कि वर्कर को मोटिवेट करना, बूस्ट करना जरूरी है, लेकिन भाई वर्कफोर्स प्लानिंग भी करनी पड़ेगी, अप्रेजल्स भी करने पड़ेंगे, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन भी करनी पड़ेगी, डिटेल्ड फंक्शन है, सिर्फ आप किसी एक चीज के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप सिर्फ मोरल एंड वेलफेयर पे काम कर रहे हो, आपने रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन नहीं करी, तो आपके पास अच्छे शेफ्स, अब शेफ का वर्ड क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि फास्ट फूड रेस्टोरेंट था, अच्छे शेफ्स नहीं होंगे तो क्वालिटी फूड, समझ में आई, उसी के रिएक्शन को मैं लेते हुए आगे चला। तो बात ये आ रही कि जिस तरह का केस होगा, हमारी बातें भी वैसी होनी चाहिए। तो बात अगर हम यहाँ पर करें, that the most important role of human resource management in a fast food restaurant is to maintain a high level of employee morale and welfare। तो एक पैराग्राफ तो सिंपली morale and welfare पा जाएगा। Morale and welfare is when the manager motivates the individual to work effectively in the organization and ensures he is not burning out। जब ये बात बता दी तो नॉलेज मिल गई मुझे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है।
HRM स्ट्रेटजीज की अगर हम बात करें ना तो बिल्कुल बात कर सकते हैं, लेकिन हम बात करेंगे भाई मोरल एंड वेलफेयर के अलावा हमारे पास प्रॉपर वर्कफोर्स प्लानिंग भी होनी चाहिए या प्रॉपर HR स्ट्रेटजी भी बनाना जरूरी है। बिल्कुल आप बात कर सकते हो उसके अंदर, आप A2 की नॉलेज डाल सकते हो यहाँ। हाँ वो मिलेंगे, सैंपल आंसर भी कराऊंगा, अभी खाली पैटर्न समझा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आप मोरल एंड वेलफेयर की बात बताओगे, अगर मोरल एंड वेलफेयर अच्छा होगा फिर आप समझाना शुरू करो, लेकिन समझाओगे किसके हिसाब से? फास्ट फूड रेस्टोरेंट के हिसाब से। मोरल एंड वेलफेयर अच्छा होगा तो हमारे रेस्टोरेंट के अंदर द वर्कर्स विल नॉट लीव द ऑर्गेनाइजेशन क्विकली, therefore the business will not have a high labor turnover, so the waiters will stay in the organization for a long period, and therefore and so the waiters can develop a connection with the visitors or the customers, and they may have strong customer relationship management. So when they will have a personalized connection, the business will have greater customer loyalty. पूरा चलते गए, कस्टमर लॉयल्टी ज्यादा होगी, मार्केट शेयर बढ़ेगा क्योंकि सेल्स बढ़ जाएंगी, हमारे ही कस्टमर्स हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स बन जाएंगे, लोगों को इनकरेज करेंगे। और इसकी कंक्लूजन कैसे करोगे? सो देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू फोकस ऑन मोरल एंड वेलफेयर। तो एंड में मैंने अपना एक छोटा सा ओपिनियन दिया। अब जब आपने मैंने छोटा सा ओपिनियन दिया ना, तो मैंने लेवल 1 की इवैल्यूएशन कर ली। कौन सी इवैल्यूएशन? लेवल 1 की। तो इसी तरीके से दूसरे पैराग्राफ के अंदर भी आपको उठाऊंगा दैट मोरल एंड वेलफेयर इज नेसेसरी, हाउएवर रिक्रूटमेंट आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, और उसको पूरा डिटेल में समझाऊंगा और एट द एंड कंक्लूड करूंगा एक ओपिनियन के साथ। फिर एंड में ओपिनियन दोगे। In my opinion, employee morale and welfare is important in a fast food restaurant. However, there are many other functions which the business needs to follow, like recruitment, selection, training, as HR is not only based on a single function. If they are only focusing on a particular function, they may lose focus on other aspects of human resource management, due to which the workers may feel demotivated and dissatisfied. So to have a satisfied and efficient workforce in the fast food restaurant, we need to focus on this, this and that. और यहाँ पर पूरा आंसर आपका कंक्लूड हो जाएगा। एक समझ लो, मैंने किसी एक को फोकस नहीं किया, मैंने दोनों को जस्टिफाई कर दिया, और यहाँ पर हमारा आंसर इस तरीके से एंड होगा। यानी इंट्रोडक्शन की 1 लाइनर लिखना है, लिख लो, 2 पॉइंटर्स लिख लो, और एक फाइनल इवैल्यूएशन का प्रॉपर पैराग्राफ। जब आप हर पैराग्राफ के एंड में एक इवैल्यूएटिव कमेंट दोगे ना, तो लेवल 1 इवैल्यूएशन। लेकिन जब अलग पैराग्राफ लिखोगे और उस पैराग्राफ के अंदर डिटेल में समझाओगे, तो ऑटोमेटिकली आप लेवल 2, 3 इवैल्यूएशन पे चले जाओगे और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एक 12 मार्कर कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा क्या था, आंसर राइटिंग पैटर्न का मेरी तरफ से एक इंट्रोडक्शन, जो अभी रिकॉर्ड पूरा हो गया है। And what we are going to do is we are going to stop the recording और इसको हम अपलोड कर देंगे चैनल पे, ताकि बार बार आप रिव्यू अपने हिसाब से जब आपको देखना हो आप कर सको। बाकी सैंपल आंसर्स वगैरह वो भी हम देखते हैं।